صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں 18 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ نے ایجنڈے میں شامل متعدد نکات کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کابینہ اراکین کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی اور کشیدگی میں خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ کابینہ اراکین نے صورتحال معمول پر لانے کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کی تعریف کی۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے۔ شہباز بتائیے گا اس اجلاس کی تفصیلات۔ جی بالکل اویس، وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جو کہ 3 گھنٹے جاری رہا اور اس میں 18 نکات نکال کی جو ہے منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلی قومی ٹیرف پالیسی کی جو ہے وزیر اعظم نے اور وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 26 فروری کے فیصلے سے ان کی توثیق کر دی گئی ہے۔ پی او ایف بورڈ اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے جو بورڈ میں الگ الگ ممبر پروڈکشن کوارڈینیشن کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں چیف ایگزیکٹو کے انتخاب کو طریقہ کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں جو ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلوں پر کابینہ ارکان کو اعتماد لے گا اور خاص طور پر تنظیموں کے خلاف جو اس وقت کارروائیاں جاری ہیں اس سے وزارت داخلہ نے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں جو پاک بھارت کشیدگی باغ صورتحال ہے اس پر جو ہے بات چیت کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جو عالمی رہنماؤں سے جو پاکستان کی باتیں ہوئی ہیں کشیدگی میں کمی آ رہی ہے، حالات معمول پر آ رہے ہیں، تو اس امید کا اظہار کیا گیا کہ حالات جو ہے دوبارہ معمول پر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ جو شاہ محمود قریشی کا کردار ہے جو انہوں نے جس میں کل بھی ایک جو پارلیمانی پارٹی اجلاس ان کے حق میں قرارداد منظور کی گئی تھی، آج ان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ جس طرح پاکستان نے عالمی برادری کو اس تمام تر معاملے پر اعتماد میں لیا تو وہ قابل تعریف ہے۔ تو کل 18 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جو ہے غور کیا گیا اور متعدد نکات کی جو ہے وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی۔ جی بہت بہت شکریہ شہباز احمد آپ کا۔ وفاقی کابینہ میں جگہ بنانے کے لیے بلوچستان عوامی کرنے والوں کے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریقین نے ایک دوسرے پر لاتوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پولیس اہلکار بیچ بچاؤ کرواتے رہ گئے۔ جسٹس صلاح الدین نے درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا۔ شادی کرنے والے جوڑے نے تحفظ کی درخواست دائر کی تھی۔ اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے اس سماجی المیے کے حوالے سے کہ پسند کی شادی کرنے والوں کے رشتہ دار ہی آپس میں لڑ پڑے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریقین نے ایک دوسرے پر لاتوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جنید شاہ سے۔ جنید، کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ جی بالکل، دیکھیے سندھ ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے تحفظ کرنے سے متعلق جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ پسند کی شادی کرنے کے بعد جو ہے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے جبکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا تحفظ فراہم کیا جائے۔ درخواست کی سماعت کے دوران ایک عجیب مناظر دیکھنے میں آئے کہ دونوں فریقین آتے عدالت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور گتھم گتھا ہو گئے، جبکہ لاتوں اور گھوسوں کی جو ہے وہ بارش کر دی گئی۔ تاہم اس دوران پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے وہ بھاری نفری فوراً کمرہ عدالت کے باہر پہنچی اور بیچ بچاؤ کرایا۔ اس دوران سندھ ہائی کورٹ کی بینچ میں شامل جسٹس صلاح الدین پور نے جو ہے وہ درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا اور روسٹر روم سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ درخواست جو ہے وہ لاڑکانہ کے رہائشی نے چند روز قبل خاتون سے پسند کی شادی کرنے کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں درخواست لگائی تھی، جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے جو ہے وہ پسند کی شادی کی، تاہم خاتون کے اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے آج سندھ ہائی کورٹ میں اس درخواست کی جو ہے وہ باقاعدہ سماعت تھی، تاہم سماعت کے دوران ہی جو ہے وہ دونوں فریقین لڑ پڑے، جس کے باعث جج کو جو ہے وہ اپنا روسٹر جو ہے وہ چھوڑ کر چیمبر میں جانا پڑا۔ جی بہت بہت شکریہ جنید شاہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مناظر بھی آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لڑائی ہوئی۔ بلیٹن میں آگے بڑے بات کریں۔ بھارت کی جارحانہ پالیسی کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری کو بتا دیا۔ اسلام آباد میں لگزمبرگ ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان کی طرف سے تحقیقات کی یقین دہانی کے باوجود بھارت نے در اندازی کی۔ لگزمبرگ وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کی امن کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔
लक्समबर्ग के वजीर खारजा जीन एज़लबर्न भी 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। The first time that I am लक्समबर्ग के हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कशीदगी के खात्मे के लिए भारत को हर सतह पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। Pakistan's position and what we stand for and the steps that Pakistan has taken to de-escalate and diffuse tensions within the region and promote peace. इस मौके पर जीन एज़लबर्न ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। we are ready to mediate between India and Pakistan, or Pakistan and India, but our mediation potential is not strong enough to solve the conflict in Kashmir. दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, मवासलात और तिजारत समेत दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त मुमालिक भी सरगर्म हैं। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी वज़ीर दौरा पाकिस्तान का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका ने भी अहम किरदार अदा किया। माइक पॉम्पियो प्राइवेट डिप्लोमेसी पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन अफसोस कि इलेक्शन भारत की मजबूरी है। भारत झूठा है, अमरीकी अखबार ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने बालाकोट हमले के कोई वीडियो सबूत नहीं दिए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। भारतीय मीडिया भी बगैर तहकीक के हुकूमती बयानात को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। दूसरी जानिब पुलवामा वाक़े में हलाक फौजियों के वरसा मोदी पर बरस पड़े। भारत ने बालाकोट हमले के वीडियो सबूत नहीं दिए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय दावों का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार ने इंडियन मीडिया को भी बेनकाब कर दिया। लिखा, भारतीय सहाफ़ी भी बगैर खोज लगाए हुकूमती बयानात को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। मुतादिद भारतीय चैनल्स ने बालाकोट हमले की जाली वीडियो दिखाई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज had sent out alerts asking the district administration. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय सियासतदानों के बालाकोट हमले में हलाकतों के दावों को मज़ाक़ खेज करार दिया। दूसरी जानिब पुलवामा वाक़े में हलाक फौजियों के वर्सा मोदी पर बरस पड़े। सरकार से बालाकोट में हमले के सबूत मांग लिए। भारतीय वज़ीर आज़म ने सबूत ना दिए तो हमला झूठा तस्वुर किया जाएगा। भारतीय बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वजीर आजम मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए जवानों के खून पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो सजा से डरे बगैर ये सवाल करती रहेंगी। पुलवामा वाक़या कैसे हुआ, पेशगी इंटेलिजेंस इत्तलात के बावजूद जाने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, पुलवामा वाक़े को ना रोक पाने का जिम्मेदार कौन है। ममता बनर्जी ने मोदी का वजीर आजम होना इस ओहदे की तजलील करार दे दिया। कहती हैं मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को प्राइवेट कंपनी बना लिया है। कोई बीजेपी पर तनकीद करे इसे पाकिस्तानी और मुल्को कौम का दुश्मन ठहरा दिया जाता है। पुलवामा हमले को भारतीय बच्चों ने भी अपनों की गद्दारी करार दे दिया। भारतीय बच्चों ने एक नगमा बनाया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि दुश्मन भारत में मौजूद है और तुम पड़ोसियों को कोसते रहो। जो बगल में छुरी रखते हैं उनको तलाश किया जाए। नगमे में पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय साजिश को भी बेनकाब किया।
और राफेल डील के कागजात वजारत दिफा से चोरी होने पर मोदी को अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का कहना है कि राफेल तैयारे स्कैंडल में मोदी पर मुकदमे के लिए काफी सबूत मिल गए हैं। करप्शन की कड़ी मोदी के साथ शुरू हुई और उन पर ही खत्म हुई। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कहती हैं कि राफेल स्कैंडल के बाद की मोदी का वजीर आजम होना इस ओहदे की तजलील है। राफेल स्कैंडल के बाद मोदी का वजीर आजम होना इस ओहदे की तजलील है। वजारत दिफा से चोरी होने पर काफी सबूत मिले हैं। राफेल स्कैंडल में मोदी पर जो मुकदमे के लिए काफी हैं। राफेल डील मोदी के गले की हड्डी बन गई। राफेल डील के कागजात वजारत दिफा से चोरी हो गए। भारतीय अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। यानी 59,175 करोड़ रुपए जैसा मोदी सरकार द्वारा संसद और संसद के बाहर बेईमानी से दावा किया गया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का कहना है कि राफेल तैयारे स्कैंडल में मोदी पर मुकदमे के लिए काफी सबूत मिल गए। करप्शन की कड़ी मोदी के साथ शुरू हुई और उन्हीं पर खत्म हुई। मोदी सरकार ने राफेल तैयारों की फाइलें चोरी करवाकर मोदी ने करप्शन छुपाने की कोशिश की। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कहती हैं राफेल स्कैंडल के बाद मोदी का वजीर आजम होना इस ओहदे की तस्लील है। इलेक्शन जीतने के लिए जवानों के खून पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलवामा वाकया क्यों कर हुआ, सवाल उठते रहेंगे। 2002 में होने वाले गुजरात फसादात केस की भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 97 मुसलमानों के कातिल बीजेपी के रहनुमा बाबू बजरंगी को जमानत पर रिहा कर दिया। बाबू बजरंगी ने 28 फरवरी सन 2002 को अहमदाबाद के इलाके नारदत्तापत्तिया में 1000 हिंदुओं के साथ मुसलमानों पर हमला किया था। भारतीय अदालत ने बाबू बजरंगी को 21 साल कैद की सजा सुनाई थी। मोदी सरकार में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम हो गए। भारतीय शहर लखनऊ में हिंदू इंतहा पसंदों ने 2 कश्मीरी दुकानदारों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की कश्मीरियों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने इंतहा पसंदों की हिमायत करने वालों को गद्दार करार दे दिया। भारत में कश्मीरी होना जुर्म बन गया। लखनऊ में इंतहा पसंदों ने कश्मीरियों पर लाठियां बरसा दी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत में कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जैसे कि वो मुजरिम हो और भारत कश्मीरियों का मुल्क नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरियों पर तशद्दुद की मजम्मत की। कहते हैं कि RSS मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग नहीं बना सकती। भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने कहा कि इंतहा पसंदों की हिमायत करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं गद्दार हैं। भारतीय मीडिया भी कश्मीरियों पर तशद्दुद के बाद शर्म से पानी पानी हो गया। बीजेपी और RSS के गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। उधर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बहाना बनाकर यासीन मलिक को कोट बिलवाल जेल मुंतकिल कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने जेल मुंतकली की मजम्मत की है। कहते हैं कश्मीर के अवाम और क़यादत को मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए तहरीक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। काबिज भारतीय फौज बेलगाम मकबूजाबादी फिर लहूलुहान। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को कोट बिलवाल जेल मुंतकिल कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं कि यासीन मलिक की कोट बलवाल जेल जम्मू मुंतकली काबिल मजम्मत फेल है। गैर जमहूरी रवैयों से कश्मीरियों को मसला कश्मीर के पुरअमन हल से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब श्रीनगर में बस स्टैंड पर दस्ती बम हमले में 18 अफराद जख्मी हो गए।
पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल होने में मज़ीद एक दिन की तौसी का नोटिस जारी किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्तान, फैसलाबाद और रहीम यार खान के एयरपोर्ट्स को कल तक मुकम्मल ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे से भी, यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल होने में मज़ीद एक दिन की तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हुक्मनामा जारी किया है। मुल्तान, फैसलाबाद और रहीम यार खान के एयरपोर्ट्स को कल तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा इस बारे में। खालिद चौधरी से हम राब्ता कायम करेंगे। एक दिन मजीद लगेगा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बहाल होने में। कालादम तंजीम जमातुल दावा और उसकी ज़ेली तंजीमें फलाही इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ सिंध हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है। सिंध के 17 अजला में कालादम तंजीम के स्कूल, हस्पताल और मदारिस समेत 56 इदारों को सिंध हुकूमत ने तहवील में ले लिया है। कार्रवाई के हवाले से बाकायदा तौर पर खत भी वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि जमातुल दावा और उसकी ज़ेली तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन के तहत काम करने वाले इदारों को सिंध हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है। राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और ख्वाजा आसिफ भी GIT के रूबरू पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हनीफ खान से। हनीफ, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, सानिया हमारे टाउन से मुतालिक इजलास 4 घंटे बाद ख़त्म हो चुका है। AD ख्वाजा की सरबराही में ये इजलास जारी था जो अभी ख़त्म हो चुका है। राना सनाउल्लाह ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, परवेज़ रशीद और ख्वाजा आसिफ ने अपना बयान रिकॉर्ड किया GIT के सामने। राना सनाउल्लाह ने बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा कि 2014 में बनने वाली GIT के सामने पेश हुआ। मुकम्मल तफ्तीश के बाद GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा चालान हुआ तो मुझे मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 127 मुल्जिमान को तलब किया था लेकिन मुझे नहीं बुलाया। सानिया हमारे टाउन में मुलविस होने के इल्ज़ाम ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट के सामने मानने से इनकार कर चुका हूँ। ये बयान था रिकॉर्ड करवाया गया। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये बयान रिकॉर्ड किया गया GIT के सामने। 4 घंटे तक ये इजलास जारी रहा जिसमें 3 रहनुमाओं के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का बयान रिकॉर्ड किया गया है। ताहम शहबाज शरीफ सामने पेश ना हो सके लेकिन उनके वकील जो है GIT के सामने पेश किया और उनका बयान तो GIT के सामने बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ खान आपका। नवाज शरीफ नासाज तबीयत की वजह से आज कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात न कर सके। ताहम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत खानदान के दीगर अफराद से मिले। मतवाले कायद से इजहार यकजहती करने के लिए फिर भी कोट लखपत जेल पहुंच गए और नारेबाजी की। जावेद हाशमी कहते हैं अभिनंदन को तो सारी सहूलतें दी गई लेकिन मुंतखब वजीर आजम को इलाज की सहूलतों से महरूम रखा गया। सिलेक्टेड वजीर आजम किसके कहने पर काम कर रहा है। नवाज शरीफ नासाज तबीयत के बायस आज कोट लखपत जेल लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कर सके। ताहम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत खानदान के दीगर अफराद से मिले। मतवाले कायद से इजहार यकजहती के लिए फिर भी कोट लखपत जेल पहुंचे, नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद हाशमी ने मियां साहब की सेहत पर इजहार तशवीश किया। अंपायर भी अगर उसको कोई है तो वो भी अपनी मर्जी का अंपायर करके गेम खेलता, ब्लेम दूसरों को लगाता है। अंपायर अपना चाहता है गेम के अंदर। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी जेल आए। अद्वियात के इस्तेमाल और अस्पताल में दाखिल होने के लिए साबिक वजीर आज़म को कायल करते रहे। नवाज शरीफ ताहाल अस्पताल मुंतकिल होने का फैसला नहीं कर सके। शफीक फैमिली के अरकान से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे अभी सोचने दें, हुकूमती हथकंडे मुझे अपने आज़म से नहीं हटा सकते। जिस पर उनकी वालिदा शमीम बेगम का कहना था कि बेटा जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश करते रहे। अभी सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी से जानते हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कुछ फैसला हो पाया है, क्या इत्तलात है कोट लखपत जेल से? जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से आज भी फैमिली ने मुलाकात की है और आज भी
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल होने का फैसला नहीं कर सकी। इस हवाले से किसी किस्म का ताहाल और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज भी स्ट्रीट फैमिली ने मुलाकात की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसने फाइल करने की कोशिश की थी कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए, क्योंकि रात के वक्त में मुलख्फत जेल में उन्हें किसी किस्म का मेडिकल कवर जो है वो दस्तियाब नहीं है, इसलिए जो है ना वो अपनी जान को खतरे में ना डालें। ताहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हुकूमत उनकी सेहत पर जो है सियासत कर रही है, इसलिए वो तस्दीक का निशाना नहीं बनना चाहते। ज़राइन हमें बताया है कि हुकूमत के ज़ेरे गौर एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के मुताबिक इस बात पर गौर किया जा रहा है कि हुकूमत लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साबिक़ मुआलिजीन और पाकिस्तानी जो तिब्बी माहिरीन है इनके दरमियान एक टेलीकॉन्फ्रेंस का अरेंज करने पर गौर कर रही है, ताकि जिनकी जो मौजूदा रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हम तैयार थे नवाज शरीफ की सेहत पर बात करने को, लेकिन लीग वाले आज बैठने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ की सेहत पर बनने वाली कमेटी अब जुम्मे को बैठेगी। पोजीशन अगर एक मरीज जो है वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते तो कैसे ज़बरदस्ती करे, लेकिन हमने तो उनके साथ आपके सामने आपको पता अंदर भी यही डिस्कशन हुई कि आप तशरीफ़ रखें, मैं और राजा साहब भी बैठ के उनका ही इंतज़ार करें। तो आपको पता असेंबली ख़त्म हुए तो आधा घंटा हो गया, तो वी वेटेड फॉर देम, पर वो उन्होंने कहा कि जी हम कल करें। एक नज़र अदालत से जुड़ी खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। LNG स्कैंडल शाहिद खाकान अब्बासी ने आज नैब में पेश होने से माजरत कर ली। साबिक वजीर आजम ने नैब को लिखे गए खत में इस्तदा की कि बैरून मुल्क में हूँ, पेशी के लिए 17 मार्च के बाद की तारीख दे दें। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने 22 मार्च को फरीकैन के वकला को बहस का हुक्म दे दिया। परवेज मुशर्रफ को अदालत नहीं, नवाज हुकूमत ने जाने दिया गद्दारी केस में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ ट्रायल के लिए दरखास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खुसूसी अदालत के रजिस्ट्रार से 14 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर फैसल बाउडा के मुबैना तौहीन आमेज बयान का मामला रावलपिंडी की अदालत ने वजीर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने और दरखास्त गुजार का बयान कलमबंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जेर जमीन पानी की कीमतों के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि अब तक कितने नोटिफिकेशन जारी हुए और कितनी रकम जमा हुई। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया, मॉनिटरिंग शुरू करती है, रकम का तयन किया जा रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक रकम वसूल क्यों नहीं की गई। आपकी पैदा करदा कन्फ्यूजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कुछ पानी की कंपनीज ने नज़रसानी की अपीलें भी दायर कर रखी है, जिसकी वजह से ये रकम इकट्ठी नहीं हो रही। हुकूमत पंजाब को नए माली साल में बजट की तैयारियों में मुश्किलात। 15 सूबाई महकमे तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में नाकाम रहे। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी खत्म, मगर बजट ड्राफ्ट तैयार नहीं हो सका। महकमे बल्दियात, सेहत, वाइल्ड लाइफ, जंगलात, खुराक, खेल और अमूर नौजवानान अपना मुसवदा तैयार न कर सके। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। अभी तक की इतलात इस हवाले से कोई मुसवदा तैयार नहीं हो सका है और हुकूमत पंजाब को नए माली साल में बजट की तैयारियों में कुछ मुश्किलात हैं। 15 सूबाई महकमे हैं जिनके तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में नाकामी है। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी खत्म, मगर बजट ड्राफ्ट तैयार नहीं हो सका। महकमा बल्दियात, सेहत, वाइल्ड लाइफ, जंगलात, खुराक, खेल और अमूर नौजवानान अपना मुसवदा तैयार नहीं कर सके। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ मुसव्विर से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब को नए माली साल में बजट की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। 15 सूबाई महकमे तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट जो है वो तैयार करने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बजट ड्राफ्ट जो है वो तैयार नहीं हो सका है। महकमा बल्दियात, सेहत, वाइल्ड लाइफ, जंगलात, खुराक, अमूर नौजवानान जो है ये अपना मसवदा तैयार नहीं कर सके और इस समेत तकरीबन ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी बजट तैयार नहीं कर सके। इस सिलसिले में 15 फरवरी की जो तारीख दी गई थी हुकूमत पंजाब की तरफ से वो गुजर चुकी है, लेकिन अब ताहम अभी पंजाब हुकूमत ने एक और डेडलाइन दे दी है तमाम महकमों को और बजट का पहला ड्राफ्ट जो है तैयार करने के लिए सख्ती से हदायत जारी कर दी गई हैं। इस सिलसिले में और तमाम मुतल्लिका महकमों को मुरासला भी जारी कर दिया गया है।
बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब एक नज़र मुख्तसर खबरों पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में अहले खाना को माली इमदाद देने की मंजूरी दे दी। स्केल 1 से 21 ग्रेड तक 16 लाख से 40 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उनका कहना था किराए बढ़ाकर गरीब आवाम पर मुआशी बोझ नहीं डालना चाहते। कराची में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत सिंध और अमन फाउंडेशन के इश्तराक से पहली बार मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। मरीजों से कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में सूबे के पहले पार्किंग प्लाजा स्काई लाइन का संगे बुनियाद रखा, जिसे 4 करोड़ की लागत से 1 साल में तामीर किया जाएगा। और कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल को मंजर आम पर लाने वाले अफजल कोहिस्तानी को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग की जद में आकर 3 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। जावकुआ पर मौजूद अफराद ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कोहिस्तान स्कैंडल मंजर आम पर लाने वाले और मुद्दई अफजल कोहिस्तानी को फायरिंग से कत्ल कर दिया गया। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के इलाके पुलिस डिस्ट्रिक्ट नंबर 13 में 10 धमाके सुने गए हैं। धमाकों के बाद इलाके में फायरिंग का सिलसिला जारी है। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाकों में 3 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। सदारती उम्मीदवार अब्दुल लतीफ बदराम धमाके में जख्मी हुए हैं। अफगान CEO अब्दुल्ला ने इस धमाके की तस्दीक कर दी है। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमलों में शहरियों की हलाकतों पर CIA से जवाब तलबी की पॉलिसी मंसूख कर दी। ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की रहनुमा रीटा सिमोन ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले को गैर जरूरी और खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी मुखालफत के बावजूद तुर्की रूस से S-400 एयर डिफेंस निजाम खरीदेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं आजाद मुल्क हैं, गुलाम नहीं। S-400 खरीदेंगे। डील पर दस्तखत हो चुके हैं। जुलाई में S-400 की पहली डिलीवरी हो जाएगी। अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का बिल अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल के जरिए अमरीका अफगानिस्तान में अपनी फतह का ऐलान करेगा और 45 रोज में फौजी इनखला का लाहे अमल तय करेगा। सेहूनी फोर्सेज ने गजा की सरहद पर फायरिंग करके फलस्तीनी नौजवान को शहीद और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वालों